अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड इनायतुल्लाह खान न्याजी साहब ने, और हम उनसे बात करेंगे थोड़ा अफगानिस्तान पीस प्रोसेस पे। और ऑफ कोर्स जब हम ये बात करेंगे तो हम कश्मीर पे बात किए बगैर कैसे रह सकते हैं, और साथ ही हम उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसीज है, पाकिस्तान के जो एम्बेसडर्स हैं वो कैसा काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। सर सबसे पहले हम चलते हैं अफगानिस्तान पीस प्रोसेस के ऊपर। तो आप क्या समझते हैं कि ये कैसा चल रहा है और आगे बढ़ रहा है या नहीं, कोई रुकावट आ रही है? I said it about a year back, 6 months back, I repeated it कि ये जो अफगान पीस प्रोसेस है ये जब शुरू होगा तो डोंट एक्सपेक्ट इट टू बी वेरी स्मूथ। लोग समझते हैं कि वहाँ के जो पावर्स हैं वो सिर्फ अफगान गवर्नमेंट और तालिबान है, विच इज इनकरेक्ट। उनके बहुत से और पावर वो भी हैं, ग्रुप्स हैं। There are a lot of power groups about which we are not aware and we normally ignore them. तो अभी जो वो उनका आपने ये पीस प्रोग्रेस देखी है, अभी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होगा ये होगा जैसे अमेरिकन ट्रुप्स पुल आउट करना शुरू हो जाएंगे, इनके इंटरनल स्ट्रगल विल स्टार्ट। इफ यू रिकलेक्ट व्हेन द यूएसएसआर केम इन, अफगानिस्तान के अंदर इंटरनल स्ट्रगल वाज गोइंग ऑन। व्हेन यूएसएसआर वेंट अवे, Taliban came in, internal struggle was going on. When Americans came in, their internal struggle was going on. Right, right. So, Pakistanis must understand one thing, that the process, peace process, Allah kare Afghanistan mein, it's a peaceful one. We all pray because we are all, they are just like our brothers. But since there are other power groups, please expect something. If something happens, it doesn't mean that the matter has finished and it is peace process has been destroyed. No, there will be impediments and we should expect them, number one. Pakistan government obviously has a very simple Afghan policy, and that is they should not interfere in the Afghan internal affairs, which they are not. Which they are not. No, Pakistan will have a problem with Afghanistan. Sorry. And that is that Indians have a lot of small bases in Afghanistan, which Pakistan has been complaining since the last 20 years. Those groups are doing nothing but trying to interfere in Balochistan and frontier. They were also interfering in Karachi. Now, obviously, Pakistan will be concerned about that, about those small, about those groups which are still there in Afghanistan. We should be friendly with every Afghan faction. And we should make sure that these small groups of Indians are neutralized. Because for the last 20 years, you know it, I know it, every Pakistani knows it, that they tried to make independent Balochistan. They tried for independent Pakhtunistan. They tried to upset entire Karachi. But I salute the Balochis of Pakistan, that they slapped the Indians on the face and they did not retaliate. A few incidents here and there, they don't matter. Number two, I salute the Pashtuns of KPK, that they zeroed all the efforts of the Indians in trying to make up Pashtunistan. So while we have a lot of strength, we have a lot of areas where we have yet to stabilize the whole thing. So that is as far as Afghanistan concerned. We should not interfere as we should not be interfering in their internal affairs. We should accept whomsoever comes to power, and our only interest with them should be bring about the best available relationship and neutralize the Indian effect, which is working against Pakistan. लेकिन सर जब भी हमने देखा है कि कुछ भी अफगानिस्तान में होता है, लाइक किसी किस्म का भी प्रॉब्लम अफगानिस्तान में आए, तो अफगानिस्तान हमेशा पाकिस्तान को ब्लेम करता है। एज यू सेड, दे आर आवर ब्रदर्स. If they are our brothers, then why they always blame on Pakistan? They put blames on Pakistan. Why we see this behavior of them? Not all Afghanis blame Pakistan. Most of the time, sir. No, most of them are pro-Pakistan. That is why there's such a large number of refugees here.
who do not want to go back. That's the gift of Jaulak. That is the gift of Jaulak. Thank God these people came and they fought through a battle under the Pakistani guidance. With Pakistan help, they fought the USSR. Otherwise, USSR didn't come to capture Afghanistan. They actually came for Gwadar, and their aim was Pakistan. And you have to salute Ziaul-Haq and the refugees and all those Mujahideens, 9 groups of Mujahideen who sided with Pakistan and who fought against USSR, which was the world power at that time. Many people younger to us, they do not know what happened in those 80s. It was a very bad time for us. And and for the first 3 years, Arzu, many people do not know, we were fighting alone. Americans did not join you. And when they joined you, they did not join you with troops. People think that American troops came against USSR, which is wrong. They came now, 20 years back. But at that time, American troops were not there. They supported you only as far as finance was concerned, limited finance and intelligence, limited weapons towards the end of it. But all the fighting was done by Pakistan Army and by Mujahideen, and you have to salute them. This is our relationship with Afghanistan, where we fought USSR, which India is trying to destroy and neutralize, and we should not let it happen. I take it from me, most of the Afghanis are pro-Pakistan. Take it from me. Sir, what about India? अगर हम अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन कर सकते हैं because they are our neighbors, तो why we failed to maintain or to कि हम कुछ इस तरह की atmosphere बनाएं for Indians also, because it's the Indian government's policies जो हमें problem करती हैं, not the people. So why don't we make people-to-people contact with India as well? Okay, India is a different ball game altogether. Afghanistan, they are Muslims. They will oppose you to an extent, but they are not there to destroy you. Indians are there to destroy you. They have till today not accepted the 1947 partition. Till today, उनकी बातों से आपको साफ पता चलता है. अभी क्या हुआ है जो हमारा इंडिया के साथ पढ़ाते हैं ना. एक सेकंड सर, हम भी तो अपने स्कूलों में पढ़ाते हैं कि हिंदू हमारा दुश्मन है. क्यों हम अपने बच्चों के जहनों में जहर भर रहे हैं? ओके, वो आप उसकी कोई वजूहात हैं जो कि गवर्नमेंट एक समझाने की कोशिश कर रही है. वो ये है, हमारे ग्रुप के जो लोग हैं, वी हैव सीन इट विद आवर ओन आइज. जब पार्टीशन हुआ है, देयर वाज अ सीरियस एफर्ट ऑफ पख्तूनिस्तान. सियासत वगैरह में पख्तूनिस्तान इशू चला है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया है, खत्म हो गया है. द पठान्स आर 100% प्रो पाकिस्तान, बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ इंडिया's goodwill. India tried its best for Pakistan and we are witnesses that we saw all this. Number 2, बलोचिस्तान को उन्होंने पूरा कोशिश किया कि वो अलग हो जाए, अभी तक कर रहे हैं. What should Pakistan do? What should Pakistan do? पख्तूनिस्तान वो अभी भी वो उन्होंने एफर्ट्स किए थ्रू बेसिस इन अफगानिस्तान. They are still doing it against Balochistan. What should Pakistan government do? They have to retaliate. They have to neutralize it. Sindhu Desh, बिल्कुल आप अभी नाम ही नहीं सुनते. It was a very serious issue after 47. Indians tried it. Now this is where Pakistan has not been able to cultivate India, because India has not accepted partition. उसके ऊपर कश्मीर आ गया. अभी कश्मीर मैं आपको अपने आपके प्रोग्राम से बताना चाहता हूँ कि कश्मीर का जो राजा था, उसने कोई ऑप्शन नहीं दी कि मैं इंडिया ज्वाइन करूँ या पाकिस्तान ज्वाइन करूँ. 26 अक्टूबर को इन्होंने तमाशा किया कि जी वो पठान पहुंच गए हैं श्रीनगर पे. अभी पाकिस्तान फौज कैसे अफगानियों को आगे, ये पठानों को आगे कर सकती है श्रीनगर, जबकि हमारा कमांडर चीफ ब्रिटिश था, हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स ब्रिटिश थे. हमारी फौज सिर्फ 2 महीने थी, 14 अगस्त, अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, 2 महीने. आप बताएं आजू 2 महीने में कितनी फौज बन सकती है? जबकि अभी ट्रुप्स इंडिया से आ रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, एंड कमांड सारा किसके पास है? ब्रिटिश के पास. इंडियन आर्मी,
इंडियन आर्मी का चीफ कौन था? ब्रिटिश, अनदर ब्रिटिश। हम्म, तो जो हमारे आर्म फोर्सेस थे दोनों साइड के, उनके तमाम कमांडर्स ब्रिटिश थे। अभी आप बताएं, पाकिस्तान आर्मी लोगों को भेज सकती है श्रीनगर, जबकि सारा कंट्रोल ब्रिटिश का इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। right. अच्छा, देन व्हाट पीपल डू नॉट नो है कि तीनों, दोनों साइड के तीनों कमांडर्स जो थे वो ब्रिटिश तरफ से। जो उनको नहीं पता वो ये है कि ये दोनों फौजें जो थी, इनका यूनाइटेड कमांड वाज कमांडर ऑकनलेक। He was the commander of both the armies. People do not know that. So what could the Pakistani officers do? Could they do anything? No. Right. Auckland Lake's office was in Delhi. वहां पर उनका, अभी just imagine, भाई Mountbatten was very ambitious. He wanted to become the governor general of both the sides. Baba, you remain as the your present appointment and एक साल और गुजारो and make sure that the division takes place peacefully. यही होना चाहिए था ना. He becomes the governor general of India. Now what happens is, ये बहाना जो किया इन्होंने कि भाई वहाँ पख्तून्स पहुंच गए हैं श्रीनगर में, they are about 90 or 100 or something. What are 90 people? Okay, अगर वो पहुंच गए हैं, आई से पहुंच गए हैं, so what should have happened? Auchinleck should just have sent battalion, जैसे उन्होंने भेजी, मगर वो इंडियन आर्मी की भेजी, नाम इंडियन आर्मी का। भाई वाई इंडियन आर्मी, वाई नॉट Auchinleck? अच्छा, वो वहां से जाके कैप्चर करते हैं और उसी रात को 26 की रात को राजा साहब से, गुलाब सिंह से, वो सॉरी जो भी उसका नाम था, उससे वो सिग्नेचर ले लेते कि दे अरेस्टेड हिम। अभी वो जो उनको पता था कि ये सारे पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने प्लेबिसाइट नहीं होने दिया। सही। अभी आप बताएं, कश्मीरी 2/3 ऑफ कश्मीर इंडिया के पास है। अगर वो प्लेबिसाइट करवाएं, और उनका इतना अच्छा रूल है इंडिया में, कश्मीर में, तो प्लेबिसाइट करवाएं। 2/3 उनके पास है। 2/3 कश्मीरी जब इंडिया ज्वाइन कर लेंगे तो ये हमारा भी कश्मीर उनको मिल जाएगा। ठीक है या नहीं? क्यों नहीं प्लेबिसाइट करवाते? ये हमारे पाकिस्तानी इसको भी, maybe because they are not confident, or I can say they are 100% sure that they will not even get one vote. हाँ. ठीक है, so this is what people in Pakistan do not understand, कि plebiscite क्यों नहीं हो रहा, despite the fact कि 2/3 कश्मीर is with them. ठीक है, अभी ये 2/3 जो कश्मीर है उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया, नहीं किया। सही। उनका मुजफ्फराबाद और गिलगित का वेदर रिपोर्ट भी देने शुरू कर दिए। हाँ बिल्कुल दी है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है सर? नहीं, ये सिग्नल मैसेजेस होते हैं, ये मैसेजेस होते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। हाँ. ये एक मैसेज होता है शुरू का कि हम वी आर वार्निंग यू, कि हम इसलिए दे रहे हैं बिकॉज वो इलाके हमारे हैं। हाँ, Now, वो इलाके हमारे, हाँ. when they say that those areas are ours, and what Pakistani civilians do not know is that what a tough time army is going through in defending all this. The Indian troops, Arzu, in Indian held Kashmir, you will be horrified to know, is more than Pakistan army. Yes, of course they are. Then they are threatening you. Then they are threatening you. No. Right. Now, how can the relationships improve? And sir, tell me something about the history. 71 वॉर में क्या हुआ था? क्यों पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा? क्यों कहा जाता है कि हमारे सोल्जर्स ने हथियार डाल दिए? Why? ये हथियार डालना और चीज है। एक चीज याद रखें कि जो वॉर होती है, अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो प्लानिंग फिगर पता है क्या होते हैं? 1 to 3। अगर आपका एक बंदा है तो आपके पास, अगर दुश्मन के पास एक बंदा है तो आपके पास 3 होने चाहिए। 1 to 3 रेशियो होना चाहिए। ठीक है, हमारी ट्रुप्स वहां पर 2 डिवीजन माइनस थी, पूरी 2 डिवीजन भी नहीं थी। सिर्फ इंडियन ट्रुप्स जिन्होंने उसको सराउंड किया और जो किया, डू यू नो देवर 12 डिवीजन, 1 to 6, and according to Manik Shah 1 to 8 ratio था। Impossible war, 1 to 8 ratio. Now this is what people do not understand.
ठीक है, कैन I'm asking you कि लोग थोड़ा अंडरस्टैंड करें, क्योंकि इंडियन मीडिया बहुत मिसगाइड कर रहा है इस पे। मैं इसलिए मैं आपके थ्रू ये प्रोग्राम देना चाहता हूँ कि 2 डिवीजन माइनस जिनके पास एक टैंक रेजिमेंट है, वहां से 12 डिवीजन चारों तरफ से आ रही है। हाउ कैन यू डिफेंड ईस्ट पाकिस्तान? नंबर 1। नंबर 2, ऑन टॉप ऑफ दैट प्लीज नोट द नेक्स्ट पॉइंट, 500,000 5 लाख मुफ्ती बहिनी उन्होंने ट्रेन किए हुए थे। ये मुफ्ती बहिनी कौन थे? पाकिस्तान आर्मी एक जीप में जा रही है, वहां से बंगाली उनको मिलते हैं, दे वो बोट्स वेव एट ईच अदर, और जैसे वो जीप जाती है वो पीछे से मशीन गन फायर कर देते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सर्वाइव। आई नो हमारे रेजिमेंटल एक दो ऑफिसर थे who were killed and one of them killed with the family। बात समझ गई आप? अभी आप बताएं, नॉर्मल ट्रूप्स 1:8 रेशियो, 1:6 मिनिमम, 5 लाख मुफ्ती बहिनी जो कि आपकी रेयर को उन्होंने बिल्कुल अनस्टेबल कर दिया। दैट इज व्हाई एवरी आर्मी ऑफ द वर्ल्ड से दैट पाकिस्तान आर्मी, नॉट ओनली पाकिस्तान आर्मी, नो आर्मी इन द वर्ल्ड कुड हैव सर्वाइव्ड। ये बात आप समझ गए? अच्छा, उसके बाद डाले थे, राइट? एम आई राइट? क्या जी? नहीं डाले थे। देखें, हथियार डालना कुछ और चीज होती है। जो ये लोग इस वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो इंडियन मीडिया में बोला जाता है कि जी 71 में पाकिस्तान आर्मी ने हथियार डाल दिए थे, और वो कोई पेपर साइन करे उसकी पिक्चर बहुत दिखाते हैं। Yes, that is the reality, because General Niazi was a volunteer for East Pakistan. He volunteered to go there, and he realized that no battle can be fought. तो आगे से वो कैजुअल्टीज है। बात समझ गई या नहीं? आपके ऊपर 12 आदमी एक बंदे के पीछे हैं, आप क्या लड़ाई लड़ेंगे? और वो चारों तरफ से घेरे हुए आपको, नेवी की तरफ से भी, सी की तरफ से भी उन्होंने आपको घेर लिया है, तीनों साइड से आपको घेरा हुआ, क्या बैटल आप लड़ेंगे? तो इट वाज अ डिसीजन ऑफ GHQ who left it to the note, and General Niazi took this decision in good faith. He saved the casualties of Pakistan Army. अगर ये बंदे मर जाते, पाकिस्तानियों को क्या खुशी होती? सही राइट। पाकिस्तानियों को क्या खुशी होती? जो लोग इस किस्म की बात करते, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर ये 30,000 बंदे मर गए होते लड़ते लड़ते, ईस्ट पाकिस्तान फिर भी आप नहीं बचा सकते थे। 5 लाख मुफ्ती बहिनी जिनको आप पहचान नहीं सकते थे, वो आपके साथ लड़ रहे थे, in addition to 12 division versus your 1.5 division, 33,000। अभी आप बताएं, आजू क्या मुकाबला क्या है? If you were the commander, or I ask anybody else, if you were the commander, would you have kept fighting? और कहते कि हाँ जी, ये 30,000 को भी मारे आप? कौन सा कमांडर ये डिसीजन लेता? राइट। सर, एक चीज और, आपको हमेशा पहले भी मेरे एक शो में आप आए थे तो आपने यही कहा था कि जो एम्बेसडर्स हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं, वो उस तरह से काम नहीं कर रहे जिस तरह उन्हें करना चाहिए, या कश्मीर कॉज को उस तरह से लेके नहीं जा रहे, किसी को कुछ ठीक से नहीं ब्रीफिंग दे रहे। क्या कहेंगे आप? अभी भी वही हाल है? नहीं, देखिए, मैं सिर्फ एक चीज कहता हूँ, आपके जो ऑफिसर्स हैं फॉरेन ऑफिस में, दे आर ब्रिलियंट ऑफिसर्स, दे आर सिलेक्टेड, it's a very professional organization, but ambassadors come from outside। ठीक है या नहीं? उनके अपने जो एम्बेसडर होते हैं वो गिनती के होते हैं, ज्यादा बाहर से आते हैं। अभी आपने नोट किया होगा कि एक रिवाज बन चुका है फॉरेन मिनिस्ट्री में कि ये जो एम्बेसडर्स हैं, जब कुछ होता है वो एक माइल्ड सी स्टेटमेंट दे देते हैं, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। ठीक है? अभी लेट्स टेक USA। We have got ambassador, plus UN में भी हमारा एक हेडक्वार्टर है। अभी USA is not a normal country, it's a very very important country। ठीक है? How many people of the USA and their think tanks and flana have we educated them? How many of them have we educated on Kashmir? हमने किया? No, the answer is no. Even the foreign officer will tell you, and foreign office people, they complain कि जी मामूली से वो बात करते हैं, they are posted out। हाँ, सही। अभी आप अंदाजा लगाएं कि पंजाब में 4 IG पुलिस कोई नॉर्मल बंदा है? He is a very senior बंदा। हाँ, exactly।
वो पंजाब में आपने 4 आईजीज एंड 4 वो चीफ सेक्रेटरीज कर दिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ वन मैन. Right. Now, if this is the case and this is the way you treat bureaucrats, and foreign office people are bureaucrats and they are brilliant people, they have come through selection. उनको बाबा काम तो करने दो. सही, यहाँ पे यही तो प्रॉब्लम है ना. Let's talk about, एक minute if you don't mind, let's talk about embassies of India and Afghanistan. I think these two countries are very important for us, and for the next few years we can see a lot of problems coming, a lot of changes taking place, and we'll have to be current and taking quick decisions. यहाँ पर मेरे through your program I'd like to suggest, let the people in these two embassies and Iran, यहाँ पर वो बंदे भेजें जो उनकी लैंग्वेज समझते हैं, और उनको 2 साल के बाद मत पोस्ट आउट करें कि 2 साल में एक बंदे को समझ आती है. हाँ, एग्जैक्टली. हाँ, तो उसको चेंज कर देते हैं. तो इन 3 कंट्रीज में फॉर गॉड सेक लीव पीपल फॉर अबाउट 5-6 years and some of them for 10 years if they are doing a good job, because यहाँ पर एक्सपर्ट चाहिए आपको. सर, वन लास्ट क्वेश्चन. सर, पाकिस्तान आर्मी के इतने बिजनेसेस क्यों है? क्या बाकी कंट्रीज में भी जो आर्मी होती है उसके बिजनेसेस होते हैं? जहां तक मैंने थोड़ा बहुत सुना है, वो लोग अपनी ही ऐसी चीजें बनाते हैं जो अपनी आर्मी के ही उसके लिए हों, किसी किस्म के हथियार होते हैं, कुछ होते हैं. हमारी आर्मी क्यों सीरियल बनाती है, सीमेंट बनाती है, पैम्पर बना रही है, इस तरह की चीजें क्यों है हमारे पास? पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी कुछ भी नहीं बना रहे, कुछ भी नहीं बना रहे, कुछ भी नहीं बना रहे. झूठ है, झूठ है, झूठ है. ये रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं. इन रिटायर्ड ऑफिसर्स को अगर ऑर्गेनाइज आपने कर दी है और वो बिजनेस चला रहे हैं विच इज मोर सक्सेसफुल देन एनी अदर ग्रुप, व्हाई इज दैट ग्रुप जेलस? ओके. दे आर नॉट कोर कमांडर्स. Okay. They are not dev commanders. Retired officers हैं जो. They are not serving officers. What is the problem with the Pakistanis who are opposed to retired officers doing this business? What's the problem? Am I not allowed to go and do any business I want? Maybe you can, of course. Yeah. Okay. If 10 of us meet together and we organize ourselves, what's the problem? कोई problem है उसमें? ये problem सारे India oriented है. They want to let your army down. ठीक है. मैं तो बल्कि इतने तक कहूंगा कि जो गवादर, नो लिसन टू मी, गवादर में अगर आप, मैं कोई 20 साल से चल रहा हूँ कि वहां पर पोर्ट बनेगा और वहां पर ये होगा, बाबा पोर्ट बनेगा तो अगर वहां पर वो बिजनेस ही नहीं है, इंडस्ट्रीज ही नहीं है, विल शिप्स कम बिकॉज इट इज डीपेस्ट शिपर इन द वर्ल्ड. तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 20 साल से 30 साल से कि ग्वादर के नॉर्थ आप एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाए. क्यों नहीं बनाया? बेनजीर साहब क्यों नहीं बनाया? नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं बनाया? बेनजीर साहब क्यों नहीं बनाया? नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं बनाया? परवेज मुशर्रफ साहब क्यों नहीं बनाया? जरदारी साहब क्यों नहीं बनाया? नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बना रहे? Why don't you ask these retired officers to make it? They will make the entire industrial area for you. उनको आप हेल्प करें, उनको, दे आर डिसिप्लिन पीपल, उनको यूज करें. उनको बोलें कि जी एक पूरा 100 स्क्वायर माइल्स में आप कोस्ट के अलोंग ये सोलर एनर्जी का एक बाग बना के दें. दे विल मेक इट फॉर यू. उनसे काम लें. बिल्कुल सही. मगर मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये शरारत है टू से कि पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी बिजनेस कर रहे हैं. सर्विंग ऑफिसर्स कोई बिजनेस नहीं कर रहे, कोई बिजनेस नहीं कर रहे, कोई बिजनेस नहीं कर रहे. बिल्कुल सही. रिटायर्ड, ये सब रिटायर्ड ऑफिसर्स कर रहे हैं. ये रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उनको ऑर्गेनाइज किए हुए. एंड हु इज ओवरलुकिंग द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज ओवरलुकिंग कि वो कोई ऐसा काम ना करें कि वे द कंट्री सफर्स. और सर एक लास्ट क्वेश्चन अगेन, वो ये कि सर हमारे हर आर्मी चीफ रिटायरमेंट के बाद बाहर क्यों चले जाते हैं? यहाँ क्यों नहीं रहता? कोई है जो यहाँ पे रह गया हो? सारे इधर ही हैं. एक ही बाहर गया हुआ. सर कौन है इधर? वो जो इससे पहले में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई में है. No. I know so many of them. They are all here. General Wahid is here. Our chief. General Beg is here. ठीक है. ये क्या कहते हैं, जनरल क्यानी इज हियर. ठीक है.
कौन है जो बाहर गया? वो एक किया उसको नहीं, जस्ट लेट मी क्लेरिफाई। राहील शरीफ उसको पाकिस्तान ने भेजा है। प्राइम मिनिस्टर ने वहां से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज रिक्वेस्टेड बाय द सऊदी गवर्नमेंट टू गिव देम दिस चीफ हु वाज रिटायरिंग। ठीक है, दिस चीफ वाज वेरी सक्सेसफुल इन अफगानिस्तान। ठीक है, they wanted, Saudi Arabia wanted to make their own force. They requested the army chief, which was Nawaz Sharif. Nawaz Sharif talked to the cabinet, they talked to GHQ, and they cleared him, and he went. What's the problem? ये लोगों को प्रॉब्लम है। इसके अलावा मुझे बता दें कौन सा आर्मी चीफ बाहर है? सर मुशर्रफ साहब बाहर है। मुशर्रफ जो बाहर है वो डिसिप्लिन की ग्राउंड पे है, कोर्ट केस की वजह से एंड हेल्थ की वजह से। ओके फाइन, ठीक। बाकी आपके हिसाब से सब लोग यहाँ पर हैं, सब इधर हैं यहाँ पर। मुझे नहीं समझ आती, मैं तो मुशर्रफ को गिनता ही नहीं हूँ इस कैटेगरी में। if he was bothered he would have been in Pakistan. उसको आप बॉदर कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू ब्लेम हिम फॉर थिंग्स ही हैजंट डन, उसको पॉलिटिकली इन्वॉल्व करके। डू यू चेंज आर्मी चीफ व्हेन ही इज इन द एयर? ही इज कमिंग फ्रॉम श्रीलंका एंड उसको क्या ऑर्डर मिलता है आजू? प्लेन को कहते हैं विद 165 पीपल के लैंड इन इंडिया। ऐसे प्राइम मिनिस्टर को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, क्या करना चाहिए? Is this the way to change the army chief? Musharraf took over, I support him. Because if he had not taken over, ये फौज भी सीरियन आर्मी बन जाती। इन पॉलिटिशियंस ने अपने अंगूठे के नीचे रखना था। इस तरीके से ज़ियाउल हक को चेंज किया और उसने भी हटाया उसको, भुट्टो को। I support it. You don't change people just like that, just because they don't agree with you. If they don't agree with you, that's all. और अगर चेंज करना है, ये ठीक है कि लैंड इन इंडिया। हाँ, आई ब्लेम मुशर्रफ फॉर वन थिंग कि व्हाई डिड ही नॉट एलिमिनेट दिस फैमिली। वो तुम्हें एलिमिनेट कर रहे हैं, तुम उनके साथ एनआरओ बना रहे हो। टू हेल विद यू। बट मुशर्रफ, आई सपोर्ट हिम फॉर टेकिंग ओवर, बिकॉज अदरवाइज पाकिस्तान आर्मी वुड हैव गॉन वेरी वीक अगर ये और ज़ियाउल हक ना टेक ओवर करते। ठीक, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, एंड आई होप कि हम आपको दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे और नेक्स्ट वीक हम एक दफ़ा और आपके साथ इस तरह का एक छोटा सा सेशन बनाएंगे और कुछ और चीज़ें, कुछ और हिस्ट्री जो है वो समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारी नई जनरेशन आ रही है या जिन लोगों को एक गलत फहमी है पाकिस्तान के बारे में, वो थोड़ा क्लियर हो सके। अच्छा, आप ये नासी क्वेश्चन आज पूछे हैं, बिकॉज अच्छा है, दिस इज गुड फॉर द यंगर जनरेशन। नो, पीपल डू नॉट नो। अभी जैसे मैं हैरान हूँ कि पीपल आर थिंकिंग ऑल आर्मी चीफ्स आर आउट, एक्सेप्ट फॉर मोस्टली यही न्यूज़ आती है। कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई दुबई में है, कोई सऊदीया में है। एक ही बंदा है राहील शरीफ और उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भेजा है। मुशर्रफ का केस ही और है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, व्हेन ज़ियाउल हक बेग आए उनके बाद ही इज इन पाकिस्तान। बेग के पास जंजुआ साहब, ही डाइड व्हाइल इन ऑफिस। उसके बाद जनरल वहीद साहब, ही इज इन पाकिस्तान। जनरल जहांगीर करामत, ही इज इन पाकिस्तान। ठीक है, तो जितने चीफ्स आपके बाद आए हैं वो सारे इधर हैं। तो सर अब ये भी तो आप बताते जाए ना मुझे कि बार बार पाकिस्तान में फौजी हुकूमत क्यों आती है? फौज का काम तो बॉर्डर में खड़े रहने का है ना, उसको गवर्नमेंट चलाना तो नहीं है। तो बार बार पाकिस्तान में ही क्यों ऐसा होता है कि फौजी हुकूमत आ जाती है? फौजी हुकूमत ने किसको हटाया? मुझे स्पेसिफिक आंसर आपको दूंगा, किसको हटाया? भुट्टो को। सर देखिए ना, भुट्टो आया था, फिर उससे पहले भी हटाने या ना हटाने की बात नहीं है। फौजी हुकूमतें क्यों रही है, चाहे वो शुरू से रही हो, और चाहे मुशर्रफ साहब की हो, चाहे ज़ियाउल हक की हो, चाहे उनसे पहले किसी की हो, क्यों थी ये हुकूमतें? इन सारे ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ तमाम पॉलिटिशियंस को, काबिलियत है तो फौज को बाहर रखो। खान या खान सब मेरी बात सुन, काबिलियत है तो फौज को बाहर रखो। अगर आप फौजी जर्नैल को बुलाएंगे, अभी सुने आप, अगर आप फौजी जर्नैल को बुलाएंगे और कहेंगे हा 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 स्टूपिड ब्लडी लाफ्टर एंड से कि जनरल साहब देखें ना, मैं तो हर एक ग्रेड 20-21 ऑफिसर्स की पोस्टिंग करता हूँ सिविलियन में, मुझे ब्रिगेडियर एंड अबव की पोस्टिंग की भी इजाजत दें। चीफ क्या करेगा? चीफ क्या करेगा? उसकी शक्ल देखेगा,
कि ये प्राइम मिनिस्टर है? कहीं पर आर्मी के ब्रिगेडियर्स की पोस्टिंग प्राइम मिनिस्टर करता है किसी मुल्क में? जब इन लोगों के ये एम्बिशंस हैं तो इनका, अभी आप नवाज शरीफ को ले लें ना, उसका बना 3 आर्मी चीफ, एक के साथ भी उसका नहीं बन सका। क्यों? बिकॉज ही वाज स्टूपिड। मुशर्रफ के साथ क्या तुम्हारी वो थी? सर फौज एक इदारा होता है जिसको गवर्नमेंट के अंडर रहना चाहिए ना। हमारी गवर्नमेंट अभी भी गवर्नमेंट एक अनाउंसमेंट करती है, थोड़ी देर के बाद कहीं और से दूसरी अनाउंसमेंट आ जाती है। हमें ये सुनने को मिलता है कि जी पिंडी से कॉल आ गई। क्यों पिंडी से कॉल आ गई? नो, मिसाल दें। नो, आई डोंट एग्री विद दैट। मिसाल दें सर। क्यों? देखिए, लॉकडाउन में एक दफा कहते हैं लॉकडाउन नहीं होगा, उसके बाद कहते हैं नहीं पिंडी से कॉल आ गई, नेक्स्ट डे लॉकडाउन, 2 घंटे के बाद लॉकडाउन हो जाता है। मेरी बात सुने, ये किसने कहा पिंडी ने? पिंडी बाबा जनरल बाजवा इज नॉट इंटरेस्टेड इन लॉकडाउन। उसके अपनी मुसीबतें बड़ी हुई हैं, वेस्टर्न बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर, ही हैज हैंड्स अप। उसको लॉकडाउन से क्या फिक्र है? सही। वाई? ये झूठ बोल रहे हैं लोग, ये झूठ बोल रहे हैं। लॉकडाउन में जो डिफरेंस आया है वो डॉक्टर्स का है और गवर्नमेंट का आया है। डॉक्टर्स एंड गवर्नमेंट, राइट। तो आर्मी का क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें? तुम लॉकडाउन करो, तुम लॉकडाउन ना करो, आर्मी को क्या फर्क पड़ता है? इनफैक्ट आर्मी के अपना MHO है, तकरीबन सुने 600 से 800 पेशेंट्स हैं ये इसके। जब आप प्राइम मिनिस्टर तक को ये कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर को भी आर्मी लाई है। इज इट ट्रू? आर्मी क्या? सर ये भी कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को आर्मी लेकर आई है। इज इट ट्रू? साहब से पूछें, ही इज द बेस्ट मैन टू आंसर दैट क्वेश्चन। हाउ एम आई? नो, हाउ एम आई? टैक्स आर्मी मैन, यू थिंक आर्मी इस तरह की किसी चीज में दखल नहीं देती? Ask PTI and ask Prime Minister Imran, they'll be able to answer this question. Who brought? But according to you, आर्मी इस तरह की चीजों में कभी पार्टिसिपेट नहीं करती, कोई किसी किस्म का। Pakistan Army must participate when they are told that we are posting brigadiers and above. You should kick that Prime Minister out. Okay, fine. You can't tell the army just to do anything that they are इनके दिमाग में आए. If I am the chief, I hope I don't slap that man. तो बाबा छोड़ो फौज को यार, फौज को अपना काम करने दो। और वो कर रही है, बिल्कुल ठीक। 1980 से वो आप लोगों की जंगे लड़ रही है। हाँ। 1980 से आप नहीं थके यार, खुदा का वास्ता। Last 20 years we are fighting the war for Pakistan. अगर तुम लोगों से डिप्लोमेसी नहीं संभाली जाती तो that's your fault. बिल्कुल ठीक। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आप और मैं किस चीज से फेड अप है? करप्शन, एग्जैक्टली। और कोई चीज का मेंटेन नहीं होती इनसे ना, सबसे बड़ा यही है। मुझे बता दें, बेनजीर ने कितने करप्ट लोगों को पनिश किया, इंक्लूडिंग हर हस्बैंड? कितनों को किया? नवाज शरीफ ने कितनों को किया? बेनजीर ने कितनों को किया? नवाज शरीफ ने कितनों को किया? इमरान खान सेम है जी। अभी इमरान खान ने कितनों को किया? जरदारी ने कितनों को किया? यार अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो। और इनके पास कितना पैसा है? अकॉर्डिंग टू सम रिसोर्सेज मिनिमम $100 billion, some even go up to the extent of $250 billion. अभी $250 billion, मैं कहता हूं पूरा इकोनॉमी रोक लो और इनके पीछे पड़ जाओ। If you get $250 billion from these idiots, मगर वही लोग पावर में, वही लोग जब इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाती फौज को ब्लेम करो। जैसे अभी आप तक ये चीजें पहुंची है ना कि सारे आर्मी चीफ बाहर हैं, कितना झूठ है, मैंने आपको बता दिया ना। सही, बिल्कुल सही। सर मैंने इसलिए आपसे पूछा ताकि जो हम देख रहे हैं, जो शो को देख रहे हैं, चाहे वो इंडियन, मोस्टली इंडियंस ये समझते हैं, ताकि उनका क्लियर हो और उनको पता चले, उनका माइंड क्लियर हो कि क्या बात है और क्या नहीं है। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आपका कि आपने ज्वाइन किया। एंड आई होप कि सर नेक्स्ट वीक आप फिर हमें कुछ टाइम देंगे और हम इसी तरह से कुछ और बातें करेंगे। You are welcome to ask me as many nasty questions, especially which pertain to the army. I will be there to answer it. Exactly. Thank you so much. That's so kind of you. God bless. Thank you.